کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected prime minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹ پتلی ہو، تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے، ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. گزشتہ 2 روز 2 بڑی تکلیف دہ خبریں آئیں. پاکستان کے 2 جید علماء دین ہم سے رخصت ہو گئے. عالم دین جامعہ بنوریہ العالمیہ کے محتمم اور شیخ الحدیث مفتی محمد نعیم مختصر عدالت کے بعد ہفتے کو انتقال فرما گئے، جبکہ کل بہت ہی معروف عالم دین ذاکر اور فلسفی جناب علامہ طالب جوہری اتوار کو ہم سے رخصت ہوئے. جناب مفتی محمد نعیم کی گزشتہ روز تدفین ہوئی اور علامہ طالب جوہری کی آج تدفین ہوئی، اور اس موقع پہ ہزاروں پاکستانی جو کہ ان کے چاہنے والے تھے وہ بہت بڑی تعداد میں ان کی تدفین میں شریک ہوئے. اور یقیناً جب یہ چاہنے والے اس انداز میں جاتے ہیں تو ایس او پیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی ذکر رہتا ہے. مفتی نعیم اپنے فتووں اور اپنے پیغامات کے ذریعے اسلام کے نام پر دہشت گردی کے سخت مخالف تھے، اور انہوں نے اس کو ہر لحاظ سے مسترد کیا اور وہ قوم کی آواز بنے رہے. ان کی غیر مصالحانہ مخالفت کی وجہ سے فوج اور سیکیورٹی ایجنسیز کی یقیناً ہمت افزائی ہوئی، دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوئی، کیونکہ وہ دہشت گردوں کی تمام کارروائیوں کو ہمیشہ غیر شرعی قرار دیتے رہے. اگر ہم میں اتحاد اور اتفاق ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہماری کامیابی ہوگی، اور اس کے بغیر جو ہے ہمارے لیے نقصان ہی نقصان. جو حملے ہو رہے ہیں بازاروں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں اور محلوں کے اندر، علاقوں کے اندر، وہ یقیناً ناجائز ہیں، حرام ہیں. تمام عالم کے اندر جو ہے نا اتحاد اور اتفاق پیدا ہونا چاہیے. آج باطل طبقے جو مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہمارا آپس کا اتحاد اور اتفاق نہ ہونا. پڑھے لکھے طلبہ دین اور دنیا سے دونوں واقف ہوں گے تو کافی حد تک ہمارے ملک کے لیے مدد ہو. ایک فتویٰ نکالا جائے تمام علماء کی طرف سے، جس کے اندر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں، جس سے باطل قوتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں، ان کو ختم کیا. معروف عالم دین جناب علامہ طالب جوہری نے کئی دہائیوں تک کمال علم سے جوہر خطابت بکھیرے. ان کے بے پناہ چاہنے والے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی جو خطابت تھی، مجالس جو تھی ان کی، وہ یقیناً پوری دنیا میں اس کو فالو کیا جاتا تھا. وہ شاعر بھی تھے، وہ مورخ بھی تھے، وہ ذاکر بھی تھے، وہ فلسفی بھی تھے. علامہ طالب جوہری انہوں نے قرآن کی تفاسیر سمیت شاعری اور مذہب پر متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، اور ہر لحاظ سے ان کا جو ان کے رخصت ہونے کا جو ویکیوم ہے، جو خلا ہے، نہیں ہوگا. انتہائی قابل قدر جید علماء دین کی رخصتی اور ان کی رحلت، اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم انیق احمد کو، جو کہ ہوسٹ ہیں ہمارے بہت ہی نامور پروگرام پیام صبح دنیا ٹی وی کے ممتاز پروگرام کے. بہت بہت شکریہ انیق صاحب. پہلے تو مفتی محمد نعیم، ان کی شناخت آپ کے نزدیک بتائیے، اہمیت بتائیے. مفتی صاحب کا جو ایک دور گزرا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب، کچھ تو کلپس آپ نے سنوائے کہ شناخت مفتی محمد نعیم صاحب کی کیا رہی. ہمیشہ امن کے داعی رہے، امن کے پیامبر رہے، اور اپنی گفتگو سے، اپنے علم سے، اپنی کوششوں سے یہ بتاتے رہے کہ دین سلامتی کی بات کرتا ہے، اور جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، وہ کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ. لیکن مفتی نعیم صاحب کی شخصیت بہت وسیع شخصیت، وسیع المشرب آدمی. عبدالحلیم چشتی صاحب کے بیٹے. 2-3 باتیں میں ان کے بارے میں ضرور عرض کروں گا کہ مفتی محمد نعیم صاحب جب 4 برس کے تھے تو آپ کے دادا مسلمان ہوئے، پارسی تھے، مسلمان ہوئے. عبدالحلیم چشتی صاحب، آپ کے والد، پانی پتی لہجہ، اس لہجے میں قرآن کریم کو سنانا. اور کامران صاحب، مفتی نعیم صاحب کے والد نے 55 برس پانی پتی لہجے میں قرآن کریم سنایا. کس باپ کے بیٹے؟ عبدالحلیم چشتی صاحب، مفتی محمد نعیم صاحب، اور مفتی محمد نعیم صاحب کی یعنی تیسری نسل
मुफ्ती फरहान साहब, नौमान, हंजला, ये तीनों बेटे मुफ्ती नईम साहब के जो कुरान करीम पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। तो तीसरी नस्ल के ज़रिए दीन आगे बढ़ रहा है। मुफ्ती नईम साहब ने, उनके वालिद ने जिस तरह उन तक दीन मुंतकिल किया, मुफ्ती नईम साहब ने अपनी अगली नस्लों को दीन मुंतकिल किया। मुफ्ती नईम साहब तो के बहुत सारे अनीक साहब कारनामे ये हैं। बताइएगा आपकी कि जो दूसरे जय्यद आलिम दीन जो हमसे रुखसत हुए पिछले 2 रोज़ के दौरान, अल्लामा तालिब जौहरी, और यकीनन जो ख़ताबत के जौहर अल्लामा रशीद तुराबी के दौर में बिखरे, उसके बाद फिर जो तवील अरसे तक जो अल्लामा तालिब जौहरी ने जिस अंदाज से ख़िताबत की और जिस तरह से अपना इल्म बखेरा, वो भी, उसका भी कुछ इसमें कोई शुबा नहीं। अल्लामा तालिब जौहरी साहब, सुभान अल्लाह, जैसे आपने फरमाया कि वो फ़लसफ़ी, शायर, ज़ाकिर, वाइज़, वो अपनी ज़ात में एक इदारा। तूर सीना बे कलीमुल्लाह मिंबर बे अनीस कहा गया है। तालिब जौहरी साहब ने अपनी मजालिस के ज़रिए, अपनी खिताबत के ज़रिए इल्म को मुंतकिल किया। मजालिस अटेंड करने वाला शख्स जब मजलिस से उठता तो खाली हाथ नहीं जाता। तालिब जौहरी साहब का दूसरा काम शाइस्तगी, रवादारी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कराची की जो तहजीब थी, यानी हिसामुद्दीन राशिदी ने कहा है, कहीं लिखा भी है कि पूरा हिंदुस्तान उजड़ा तो कराची आबाद हुआ। कराची की एक तहजीब थी और उस तहजीब को लेकर आगे बढ़े अल्लामा तालिब जौहरी साहब। तालिब जौहरी साहब शायर थे। हरफ नुमू उनका एक मजमूआ कलाम सामने आ चुका है। मंतिक और फ़लसफ़ा किताबें इंतहाई शगुफ्ता, वसीउल मशरब। सबसे बड़ी बात कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई, ये बहुत बड़ा काम था तालिब जौहरी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली अहमद हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे कोरोना का माहौल है, तबाही मची हुई है, मगर इस दौरान दहशतगर्द चूक नहीं रहे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। कबायली इलाकों में बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। हमारी फ़ौज और उसके जांबाज अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, हम पे आँच नहीं आने दे रहे। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पूरी कौम, सिक्योरिटी फोर्सेस, सब मिल के पूरी कौम उलझी हुई है कोरोना मामलात में। दहशतगर्द समझते हैं ये मौका अच्छा है और इसी में उनकी शैतानियत को हमने ज़ोर पकड़ते हुए देखा है कल। और इसका मरकज़ हमने देखा है कि कबायली इलाके हैं या बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके। कल एक ऐसी शैतानियत हुई, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के हमला किया गया। हमारा एक नौजवान कैप्टन और एक जवान, इसमें उन्होंने जाम शहादत नोश किया। 2 हमारे जवान ज़ख्मी हुए। 4 महीनों के दौरान पूरी कौम जब लगी हुई है, उसके अब सारी फोकस जो है वो कोरोना पर है। इस दौरान दहशतगर्दों ने कार्रवाइयाँ बढ़ाने की कोशिश की है। 10 वाक़यात इसमें हो चुके हैं। 26 हमारे एहलकारों ने जाम शहादत इसमें अब तक नोश किया है। 15 ज़ख्मी हुए हैं, मगर हम पर आँच नहीं आने दी है हमारी पूरी पाकिस्तान की कौम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, दहशतगर्दों की उस फ़ज़ा से बहुत महफूज है जो अब से पहले हम कई साल पहले तक देखते रहे, मगर इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। और वो हमारे जवान हैं, हमारे अफसरान हैं, हमारी फोर्सेस के, हमारी फ़ौज के लोग हैं। उसकी तो कमर टूट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में ये जो वाक़यात होते रहते हैं मुसलसल इक्का दुक्का, ये कौन लोग हैं और ये कहाँ से क़ुव्वत और इनको हिमायत मिल रही है? देखिए कामरान, अब बड़ा वाज़ेह हो चुका है गुज़िश्ता 3-4 बरसों में कि जो मंसूबा पाकिस्तान काम से दो चार करने के लिए, यहाँ पे इंतशार फैलाने के लिए 2007 के आखिर में, 2008 के शुरू में शुरू किया गया था, और वो था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए यहाँ पे एक जंगो जदल की सूरत हाल पैदा की गई थी। ये उसका एक तसलसल है। अब गुज़िश्ता तकरीबन 6 बरसों के दौरान जितनी कारी ज़रब इस पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगाई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे, तो उसके बाद ये मुख्तलिफ नामों से उभर के सामने आते रहे। कभी दाइश था, कभी इस्लामी सूबा खुरासान था, कभी जमातुल अहरार और अहरारुल हिंद, कुछ इस किस्म के नामों से। और उसका बुनियादी मकसद एक ही था कि यहाँ पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को निशाना बनाया जाए, उनको डीमोरलाइज किया जाए। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि डीमोरलाइजेशन तो दूर की बात, इनको इंतहाई कारी ज़रब लगाई गई। अब आपका जो सवाल था कि ये कौन लोग हैं, क्यों हो रहा है इस तरह, उसका बड़ा आसान जवाब है। इसका सारे ताने बाने
अफगानिस्तान से मिले हुए हैं। जब से ज़ल्मे खलीलजाद अमरीकी नुमाइंदे और पाकिस्तान के अमन मुज़ाकरात में शामिल करने के लिए, और वो प्रोसेस कामयाब हुआ 29 फरवरी को, वहाँ से वो सहूलतकार जिन्होंने TTP और इस जैसे बहुत सारे लोगों को खड़ा किया था पाकिस्तान में बेयकीनी फैलाने के लिए, उनको और उनके जो हमनवा हैं अफगानिस्तान में, ऐसा लग रहा है कि शायद वो इर्रेलेवेंट हो जाएंगे अगर सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को मुकम्मल तौर पर निकालने का फैसला कर लिया। पहले ही 8,600 तक उनकी अब तादाद आ चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये पैटर्न बड़ा वाज़ेह है कि आप कचौके लगाते रहें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, चाहे वो बलूचिस्तान का सरहदी इलाका है या हमारे खैबर पख्तूनख्वा का सरहदी इलाका है, लेकिन चूंकि पैटर्न बहुत वाज़ेह हो चुका है। ये जो बलूचिस्तान में लोग ये बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, ज़ाहिर है कि इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, छुप के हमला करते हैं, और फिर ये जो इधर हमारे ट्राइबल एरियाज़ की तरफ होती है, ये लग नहीं रहा कि वो क़ुव्वत है या वो नंबर्स हैं जो कि इससे पहले कभी हुआ करते थे। हम क्या बहुत ही स्मॉल नंबर्स की बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में भी और इधर भी, जो बच्चे खुचे दहशत 2560 किलोमीटर तवील हमारी सरहद है अफगानिस्तान के साथ, और बहुत वाज़ेह था कि ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान का इलाका है उसको इस्तेमाल किया गया बैरूनी क़ुव्वतों ने। वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहती, वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात पे खफा हैं, उससे नाला हैं, और वो क़ुव्वतें जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान को जो दोबारा एक फुट होल्ड मिला है उससे नाला हैं, क्योंकि उसके नतीजे में उनकी अपनी रेलेवेंस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी अगर अभी बैनुल अफ़गान मुज़ाकराती सिलसिला शुरू होता है, जो कि उम्मीद है बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान को ये कुर्बानी देना पड़ेगी बदकिस्मती, लेकिन ये कि जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए, अवाम के दिफा के लिए हम वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, और हमें इस पे फ़ख्र होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ गुल हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना से जुड़ी, माइशत से जुड़ी एक और अहम मामला है पंजाब में, KP में। ये जो बेचारे हमारे हेयर कटिंग सैलून वाले हैं या ये लड़कियाँ हमारी जो ब्यूटी सैलून्स में काम करती हैं, ये हज़ारों की तादाद में हैं। पंजाब में ये खुल चुके हैं, KP में खुल चुके हैं, लेकिन सिंध में ये नहीं खुले हैं और कराची में लोग इस सिलसिले में बहुत परेशान हैं। इस मसले पर रोशनी डालते हैं छोटे से वाक़े के बाद। कोरोना की सूरत हाल में पाकिस्तान में हजाम की दुकानों, ब्यूटी सैलून, हेयर कटिंग सैलून वगैरह से वाबस्ता हज़ारों मर्द और ख़वातीन को यकलख्त बेरोज़गार कर दिया था। लेकिन पंजाब, KP और बलूचिस्तान में ईद से 10 दिन पहले ये तमाम सर्विसेज खोल दी गई SOPs के साथ, तो वहाँ पर ये रोज़गार जो है वो बहाल हो गया। लेकिन कराची में 19 मार्च से मुसलसल ये हजाम की दुकानें, ब्यूटी सैलून्स और वो मकामात जहाँ पे हमारी ख़ास तौर पे जो ब्यूटी सैलून्स हैं, यहाँ पे हज़ारों ख़वातीन काम करती हैं, अपने घरों को चलाती हैं। हजाम की और हेयर कटिंग सैलून्स में हज़ारों मर्द काम करते हैं, लड़के काम करते हैं, ये सब बेरोज़गार बैठे हुए हैं। और इन सब का कहना यह है कि वो उनके यहाँ तो SOPs पे अमल करना मसला ही नहीं है। दूसरे कारोबार जहाँ पर लोगों के झमघटे होते हैं, इस किस्म का झमघटा, इस किस्म का हंगामा ब्यूटी सैलून्स में, हेयर कटिंग सैलून्स में, हजाम की दुकानों में नज़र नहीं आता। लोग एक दूसरे से फासले पे बैठते हैं, और अगर मज़ीद इस सिलसिले में कोई SOPs है वो इस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। और इन लोगों की इब्तिदाएँ हैं जो हमसे भी बड़ा अप्रोच कर रहे थे कि हमारे इस मसले को जो है वो हाईलाइट किया जाए। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो लड़कियां जो कि इन ब्यूटी सैलून्स में काम करती हैं। इस पर हम बात करते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं सईदा मांडवी वाला, जो आजकल ये ब्यूटी सैलून्स और हेयर कटिंग सैलून्स हैं उनकी एसोसिएशन उसको रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईदा साहिबा। आप बताइएगा कि कितने लोग इस वक्त इस बिज़नेस से इन्वॉल्व हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, और उनका जो यकीनन अपनी सस्टेनेंस के लिए बहुत बुरे हाल से। जो हमारे सिंध में जो है, कराची में, वी हैव 220 सैलॉन्स जो SRB के साथ रजिस्टर्ड है, और 340 जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है। इन सैलॉन्स में तकरीबन 10,000 से ऊपर खवातीन काम करते हैं, और उनके लिए बहुत मुश्किलात वक्त आ गया है। ये जो हमारा बिजनेस है ये वुमेन लेड बिजनेसेस है, और हम जो प्रोवाइड करते हैं माइनॉरिटीज़ को, ये स्किल हम उनको देते हैं ताकि वो भी एम्पावर हो जाए और वो अपना घर और चूल्हा और
مطلب بچوں کے ایجوکیشن وہ سب چلا سکتے ہیں. تو اب میں سمجھتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ ہم لوگ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, ڈائیلاگ نہیں کریں گے, یہ جو پرولونگ کلوجر ہے یہ سیلونز کے لیے, یہ ہم لوگ ہمارے ملک کے لیے بہت میسو امپلائمنٹ کا اسپائک آ جائے گا اور پھر اکنامک برڈن بھی ہو جائے گا. تو میرا یہ صرف یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ پنجاب میں تو یہ کھل چکی ہیں اور ایس او پیز کے ساتھ. آپ بتائیے کہ آبویسلی حکومت کا اپنا اسٹینڈ پوائنٹ ہے کہ اس وقت کرونا کا معاملہ ہے, آپ لوگ انشور کر سکتے ہیں کہ پراپر ایس او پیز ہو, پراپر کیئر ہو, کیونکہ دنیا میں بھی سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ سیلونز ہی کھولے گئے پوری دنیا کے اندر جب یہ ریلیکسیشن ہوا, لیکن یہاں پہ خطرہ یہ ہے کہ یہ جگہیں ایسی ہیں کہ اس سے یہ اسپریڈ ہو سکتا ہے. بتاتی ہوں کامران بھائی, ایکچولی ہم نے کمشنر صاحب کے ساتھ ڈائیلاگ کیا تھا فرام دی 8th of March, not to open but to look forward to when we reopen. اور ہم لوگ کے ساتھ ہم نے ان کو بھی کیا تھا, پھر سی ایم صاحب کو ایک لیٹر گیا تھا. ہماری جو انڈسٹری ہے پاکستان ہیئر اینڈ بیوٹی ایسوسی ایشن کے طرف سے ہم نے ایک سی ایم ہاؤس میں چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی میں گئی تھی. اب ان دوران سارے سروسز سیکٹر تھے, وہ مطلب ریٹیل سیکٹر, فوڈ سیکٹر. ہمارا کنیکشن بریک ہوا, سعیدہ مانڈوی والا ہمارے ساتھ تھی, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ اس دوران ابھی آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں, بریک ہو رہا ہے, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں. نیوز ہیڈ لائنز کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. ایک بار پھر گونج ہے کہ ایم کیو ایم الطاف حسین دراصل بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا بغل بچہ تھے, ان کے ہاتھ میں کھلونا تھے. مگر یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے, بارہا یہ انکشاف ہوتا رہا ہے, مگر سب سے پہلے یہ انکشاف سن 1990 میں ہوا تھا, جب میں نے اپنی ایک خبر کے ذریعے جو اس وقت کے اخبار ڈیلی نیوز میں شائع ہوئی تھی, ہم نے اس رابطے کا انکشاف کیا تھا حکومتی رپورٹ کے ذریعے. اس کے بعد سے مسلسل یہ بات کوئی پوشیدہ نہیں رہی, مگر اس کے باوجود ایم کیو ایم اور الطاف حسین پاکستان کی سیاست کے کلیدی کردار رہے. تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے ایم کیو ایم کی الطاف حسین کی مدد مانگی, ان کی آؤ بھگت کی, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی حکومت بنانے کے لیے کرنا پڑا ہو سن 1988 میں, یا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کرنا پڑا ہو سن 2004 میں, یا اس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون, اسے اپنی حکومتوں کے لیے ایم کیو ایم کی ضرورت پڑی. الطاف حسین کی آؤ بھگت کی گئی اور اس معلومات کو ایک جانب رکھ دیا گیا کہ وہ دراصل را کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. مگر یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا قصہ نہیں ہے. جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور اقتدار میں ایم کیو ایم کی جی بھر کے آبیاری کی, اور ایم کیو ایم کو جو قوت جنرل پرویز مشرف کے دور میں ملی وہ شاید کسی اور سیاسی جماعت کے دور میں نہ ملی ہو. الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے را سے تعلقات کے حوالے سے پچھلے کئی سال سے مسلسل مستحکم خبریں آ رہی ہیں, مستحکم اطلاعات آ رہی ہیں, بلکہ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے. اپنے پروگرام میں ہم ذکر بھی کر چکے ہیں کہ ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے دو بہت ہی کلیدی ساتھی, ان کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ یعنی کہ ایم انور اور طارق میر, اسکاٹ یارڈ کو اپنے اقبالی بیانات میں را کے ساتھ الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے تعلقات کی پوری تفصیل فراہم کر چکے تھے, جو کہ اس پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھائی بھی تھی. اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ میں ایم انور نے مناسب سمجھا کہ اس کو مزید دہرائیں, اور اس کے لیے انہوں نے کل جے نیوز کے ایک انٹرویو میں کہا. میرے پاس ندیم نصرت صاحب آئے اور انہوں نے کہا آپ کی ایک ملاقات ہے, آپ مل لیں انڈین ڈپلومیٹ سے. میں نے کہا میں اکیلے تو نہیں ملوں گا, آپ بھی چلیں. بولے نہیں, وہ تو اکیلے ہی ملیں گے. وہ گئے, باہر کھڑے تھے, وہ میں ملا. پھر میں نے کہا کہ میں اکیلے تو بات نہیں کروں گا, میرے سینئر آئے ہوئے ہیں ندیم نصرت صاحب, وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. بولے نہیں انور بھائی, وہ تو بھائی ہو گئے. انور بھائی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو خیر آدھے گھنٹے کے زید و بحث کے بعد انہوں نے کئی کال کیے, پھر کہا اچھا آ جائیں. دس از ہاؤ آئی گاٹ کنیکٹڈ. جو بھی اگر ہم انڈیا سے تعلقات تھے تو ہم تو جو پارٹی لائن تھی وہ ٹو کر رہے تھے نا, تو مجھے کنیکٹ کرایا گیا تھا نا. پارٹی کی لائن تھی, حکم ماننا تھا, وہ ہم نے کیا. ہاں پیسے لاتے تھے, وہ دے دیتے تھے.
جی جیسے میں نے عرض کیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانا قصہ ہے۔ 22 ستمبر 1989 کو اس وقت کے ڈی آئی جی پولیس کراچی افضل علی شگری نے محکمہ داخلہ کو ایک رپورٹ بھیجی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایم کیو ایم سیاسی جماعت نہیں بلکہ دہشت گرد تنظیم ہے، اور اس دہشت گرد تنظیم کا بقول ان کے تعلق را سے ثابت ہو چکا ہے۔ یہ خبر میں نے ڈیلی نیوز میں بریک کی تھی اور اس نے طوفان برپا کیا تھا، جس کے بعد بالآخر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ اس حکومت سے نکل گئی تھی، اس اتحاد سے باہر آ گئی تھی جس میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت کے تحت شامل ہوئی تھی۔ ایم کیو ایم کے عسکری ونگ یا جناب الطاف حسین کے را سے تعلقات کے الزامات کل کی پیداوار نہیں ہیں، یہ الزامات آتے ہوئے 27 سال ہو چکے ہیں۔ ایم کیو ایم کو را یا دہشت گرد تنظیم ہونے کی ابتدا سب سے پہلے اطلاع میں نے ڈیلی نیوز اخبار میں دی تھی 22 ستمبر 1989 کو، جب اس وقت کراچی کے پولیس کے ڈی آئی جی جناب افضل شگری نے 1989 سپٹمبر میں وزارت داخلہ کو ایک رپورٹ بھیجی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایم کیو ایم سیاسی جماعت نہیں بلکہ دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلقات ہیں۔ اس سب کے باوجود ایم کیو ایم کا پاکستان کی سیاسی قوتوں کے ساتھ آنکھ بچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی ایم کیو ایم پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا حصہ بن جاتی، کبھی پاکستان مسلم لیگ نون کے آپریشن کا ایم کیو ایم نشانہ بن جاتی، کبھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن جاتی حکومت کے ساتھ، اور کبھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے آپریشن کا حکومتی آپریشن کا جیسے کہ جنرل نصیر اللہ بابر نے کیا تھا اس کا نشانہ بن جاتی، اور یہ کیفیت آنکھ بچولی ایم کیو ایم کی پاکستان کی تمام قوتوں کے ساتھ جاری رہی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا ایم کیو ایم اور را کے تعلقات کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا لوکل میڈیا میں بے پناہ خبریں آ چکی ہیں۔ الطاف حسین کے اور اس سے منسلک ایم انور طارق میر کے اخباریاتی بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ ان کو کسی نہ کسی انداز سے جاری بھی کر چکی ہے۔ ایم کیو ایم را تعلق جو ہے یہ ایک مسلمہ مگر پرانی خبر ہے۔ حوالے سے اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر فاروق ستار۔ طویل عرصوں تک کئی دہائیوں تک جناب الطاف حسین کے پاکستان میں دست راست رہے، اس کے بعد انہوں نے الطاف حسین سے علیحدگی اختیار کی اور ایم کیو ایم پاکستان کی داغ بیل ڈالی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ ایم انور یہ باتیں اس سے پہلے کر چکے ہیں لیکن اس بار ان کو یہ باتیں اس طرح سے باقاعدہ کیمرے پر آ کے کہنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ آپ کے خیال میں کیا پس منظر ہو سکتا ہے؟ آپ اس میں کیا ریڈ کر رہے ہیں؟ ایم انور نے اس موقع پر یہ بات کیوں کہی اور اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے، یہ تو ایم انور ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، اور اس پہ میرا کوئی روشنی ڈالنا، کیونکہ دیکھیں صورتحال اتنی سادہ بھی نہیں ہوتی جتنی کہ لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ ایک تاریخ رہی ہے جس میں پروپیگنڈا بھی رہا، کیا سچ کیا جھوٹ، اور ایم انور نے اس بات پبلک میں آ کے نہیں کہی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کہی، تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی ان باتوں کو کبھی اون نہیں کیا پبلکلی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک اگر آپ میرا رول جاننا چاہیں تو جب کوئی بات کانکریٹلی سامنے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بالکل میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کب پہلی بار شک ہوا کہ الطاف حسین اور جو ایم کیو ایم استعمال ہو رہی ہے را کے ہاتھوں میں، آپ کو کب اس کا احساس ہوا؟ کیونکہ اب یہ باتیں تو عام طور پہ سب آپ سے منسلک جتنے ساتھی ہیں جو بڑے لوگ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا راز نہیں تھا، یہ سب کو پتہ تھا کہ بھارت کے ساتھ اور اس کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ الطاف حسین کے اور ایم کیو ایم کے
بہت دیرینہ تعلقات ہیں، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم 90 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں، 2000 کی دہائی کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو کوئی بہت تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، قصہ مختصر یہ کہ میں حلفیہ بھی کہہ سکتا ہوں اور بالکل جو ہے وہ حق و انصاف کے ساتھ بات کروں گا کہ جہاں شک کی بات ہو، ہیئر سے ہو، سنی سنائی بات ہو، تو چاہے وہ کوئی بھی کہے، میری پارٹی کے اندر بھی کوئی کہے، جب تک یہ بات میرے سامنے نہ آ جائے کہ کس ڈپلومیٹ سے کب ملا گیا، کیا ندیم نصرت کا اس میں کوئی رول تھا جو ایم انور آج بتا رہے ہیں، ایم انور نے اس سے پہلے مجھے کہا ہو کہ ان کا یہ رول تھا اور وہ اس طرح ملتے رہے ہیں، یا مجھے الطاف حسین صاحب نے کبھی کوئی اس طرح کی بات کی ہو، یا ایسے کسی پیسے ملنے کی کوئی اطلاع ہو کہ ملے ہیں اور وہ پھر کہاں پر استعمال ہوئے۔ دیکھیں، ہمارے سامنے تو جو شدت کے ساتھ بات آئی کہ منی لانڈرنگ ہوتی رہی اور یہاں سے پیسہ گویا کہ جاتا رہا، اب اگر انڈیا سے بھی پیسہ آتا رہا پھر وہ کیسے اور کہاں استعمال ہوتا رہا، اور جو اقبالی بیانات ہیں وہ بھی کن حالات۔ فاروق بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، دیکھیں مجھے کہنے دیں، دیکھیں میرا رول کہاں ہے کہ میں نے جب اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے جب میں نے دیکھا سنا 22 اگست کو کراچی پریس کلب پر، تو جو آئین پاکستان کے ساتھ میری وفاداری، ریاست پاکستان کے ساتھ جو میری جو محبت اور جو ریاستی اداروں کے ساتھ، تو میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ انف از انف، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی، وہاں سے ایک لکیر کھینچی گئی ہے۔ 23 اگست کو میں پاکستان، آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دوسرا، مگر جب آپ نے 22 اگست کو انف از انف کہا، اس سے پہلے اپریل کے مہینے میں مصطفیٰ کمال پاکستان آ کے وہ تو ساری باتیں، ایک ایک چیز، ہر نقطے کو، ہر چیز کو بیان کر چکے تھے۔ اس سے پہلے تو یہ پورا پٹارا کھول چکے تھے وہ جب مصطفیٰ کمال پاکستان واپس آئے تھے اپریل کے مہینے میں، کہ را سے کیا تعلق تھا، کس طریقے سے چلتی تھی، اور اس کی ایک ایک چیز انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل میں دی تھی۔ کامران خان، اس کے بعد تو اس کی نفی تو ناممکن تھی نا۔ دیکھیں کامران خان، مصطفیٰ کمال نے اگر ایسی باتیں کی تو اس کی ایک ٹائمنگ تھی، ایم انور نے ایسی بات کی۔ دیکھیں میں کسی کو بچانے اور کسی کو پھنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا، حق ایمان ہوں، جو میرا ضمیر کہتا ہے وہ میں بات کر رہا ہوں۔ جب مجھے 22 اگست کو میرے گناہگار کانوں نے یہ سنا، میں نے اسی دن رات کو میں جا رہا تھا، مجھے تو وہ ٹھاکر نہ لے جاتا تو میں تو پریس کلب گیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا رینجرز ہیڈ کوارٹر میں جاتا، لیکن میں نے 23 اگست کو اپنا وہ فرض پورا کیا، اور میں کچھ لوگوں کو گواہ بنا کر رینجرز کی تحویل میں 8 گھنٹے تک راہ میں گیا تھا۔ اس کے بعد یہ جو 18 جون کو 2020 جو بھی فیصلہ آیا، تو سب سے پہلے تو میں آگے آیا اور میں نے کہا کہ یہ مناسب فیصلہ ہے۔ میں نے ان کی بیوہ کے ٹویٹر کو سنا، میں نے جو ان کی والدہ سے بات کی، انہوں نے کہا اچھا جی یہ عمران فاروق صاحب کی بات بھی ہم کر لیں گے۔ فاروق بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ بات تو ایک عام معلومات تھی نا کہ آپ کے خط پہ بھارتی سفارتکار ویزے جاری کر دیا کرتے تھے جن لوگوں کو آپ ریکمنڈ کیا کرتے تھے، یہ تو ایک عام معلومات کی بات ہے نا۔ دیکھیں نہیں ہے کہ ہزاروں ویزے منسوخ بھی ہوتے تھے، مسترد بھی ہوتے تھے، منسوخ نہیں مسترد ہوتے تھے، اور کچھ ویزے لگ بھی جاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہماری یو کے کی حکومت سے ایسی سیٹنگ تھی یا انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اگر میری کسی پولیٹیکل پوزیشن کو لے کر، میرے بیک گراؤنڈ کو لے کر، جس میں شاید کوئی رپورٹ جھوٹ یا سچ بھی نہیں ہے، ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں، ہم بھارتی ویزوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت، خالی وہ دوسرے سفارتکار یا دوسری سفارت خانے لگا دیں تو ایک الگ بات ہے، ہم تو بھارتی ویزا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے نا حاصل کرنا۔ دیکھیں وہ عام معلومات کی بات یہ ہے کہ آپ کے خط پہ مل جایا کرتا تھا۔ دیکھیں ہمارے بھارتی ویزوں کا سلسلہ اگر میں نے کبھی لیٹر لکھا تو اس وقت لکھا جب صدر پرویز مشرف نے بھارتی حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، دونوں ملکوں کے درمیان ایک وہ جو تھا ایک 8 نکاتی جو ہے وہ ان کے درمیان ایک چارٹر طے ہوا تھا گفتگو کا، جس میں کشمیر کے مسئلے پر بھی بات چیت، یہ ساری باتیں جب ان کے ساتھ تعلقات کی بہتری اور بحالی کی بات ہو گئی تھی، اور ان کے سفارتکاروں کا یہاں پر سیاسی جماعتوں سے ملنا، مختلف وزراء سے ملنا، وزراء کا ان کے پروگرام میں جانا، صدر مشرف کا جو ہے وہ دہلی جانا، آگرہ جانا، ہمارے یہاں سے سیاسی
सियासी वफूद वहाँ की कॉन्फ्रेंसों में जाते थे, इंडियन पार्लियामेंटेरियन यहाँ आते थे, ये उस ज़माने की बात तो हो सकती है, लेकिन ये मेरी ज़रूरत नहीं हो सकती इतनी कि मैं ऐसे वक्त में, जब ये आज जो LOC पर हो रहा है, जो कश्मीर में लॉकडाउन जो गुज़िश्ता 1 साल से जो वहाँ भारतीय हुकूमत ने किया हुआ है, ऐसे ज़माने में मैं ये करूँ कि मैं कोई भारतीय वीज़े लगवाऊँ। देखिए, ये तो उस ज़माने की बात हो सकती है जब मैंने 1-2 लेटर लिखे हों जिस पे वीज़े लग गए हों, जब हमारे ताल्लुकात खुशगवार या बेहतर रहें, तो ये उस वक्त की तो बात हो सकती है। लेकिन मेरी पूरी बात सुन लें कि मैंने 18 जून को इस फैसले को सबसे पहले आगे आके कहा कि ये मुनासिब फ़ैसला है, क्योंकि कॉन्क्रीट बात हो गई, और इससे पहले 22 अगस्त को कॉन्क्रीट बात हो गई, और तीसरी कॉन्क्रीट बात अब एम अनवर ने, जो दस्ते राज थे, जो लंदन में थे, और ये सारे मामलात अगर लंदन के हैं और लंदन में पाकिस्तान में कहीं सिफारतकारों के साथ मिलके कोई इस तरह की साजिश हुई, कोई इस तरह के पैसे वसूल हुए, किसी को दिए गए, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसकी अगर कोई कहानी है तो फिर ज़रूर आनी चाहिए। और अब ये जिस तरह इमरान फारूक कत्ल मुकदमे में बरतानवी हुकूमत और इदारों ने ताउन किया, एक मेरी आखिरी बात सुन, आखिरी बात सुन, आपको फारूक ये बताइएगा कि कभी कभी ठोस आपको शक हुआ कि पैसे जो हैं ये भारत से आते हैं, इस कभी भी आपको इस पूरे दौर में 23 अगस्त से पहले आपको कभी इस पर शक हुआ कि ये भारत से बहुत रॉ से ताल्लुक़ है, और अल्ताफ़ हुसैन का, और फंडिंग भी आती है और लाइन भी आती है भारत से? कभी, मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आपको कभी शक हुआ? देखिए, मेरा शक अगर कहीं थोड़ा गुमान में बदला तो वो मुस्तफ़ा कमाल ने आके 3 मार्च 2016 जो इंकशाफ किया, और मैं समझा कि अब कॉन्क्रीट बात आई है, वो ये कह रहे कि उनके पास सबूत और शवाहिद हैं, कह रहे हैं। देखिए, ये सारी बातें हियर से हैं, किसी के मुंह से किसी ने सुनी, लेकिन हुआ ये कि फिर जब FIA वाले गए, अगले ही 2 रोज़ के बाद FIA की पूरी टीम वहाँ पहुँच गई थी मुस्तफ़ा कमाल के पास। शायद हयात मेरे ख्याल में जो उस वक्त के अफसर थे वो पहुँचे थे, लेकिन वो मायूस होकर चले गए, कोई सबूत और जो है वो कोई सबूत और शवाहिद शेयर नहीं किए गए थे। तो अगर मोहम्मद अनवर ने बात की तो बरतानवी हुक्काम या स्कॉटलैंड यार्ड की वो रिपोर्टें जो कि मुबैना तौर पर बाहर आई हैं, जिन पर लोगों ने तबसरे तज़िये किए हैं, तो मैं कहता हूँ इस मामले को आगे बढ़ाएं। मैंने तो खुद पार्लियामान में जब खिताब किया था 22 अगस्त के बाद, 23 अगस्त को लंदन से पार्टी को अलग किया। यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे उस मामले का जिसमें लगता है कि इमरान खान ने भेड़ों के छत्ते में हाथ दिया है, यानी कि पाकिस्तान के शुगर के बैलेंस या शुगर बड़ों पर हाथ डाला है, और ये सब शुगर बड़े पाकिस्तान की सियासी जमातों के भी बड़े हैं। इस हवाले से कामयाबी मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से कहा कि जी भर के आप तहकीकात करें, और उस रास्ते में रुकावट और जो हुक्म इब्तनाई था वो ख़त्म कर दिया। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज हमें ज्वाइन करेंगे। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब चीनी के कारोबार और इससे मुंसलिक पाकिस्तान के बड़े सियासी कानवादों पे हाथ डाला तो यकीनन ऐसा लगा कि उन्होंने भेड़ों के छत्ते में हाथ दे दिया है। इसी वजह से जो इसके असरात हैं वही ख्याल यही था कि वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत उस दबाव को नहीं सह पाएगी, क्योंकि दरअसल ये चीनी का कारोबार और इससे मुंसलिक जो तमाम बड़े ख़ानदान हैं वो पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी तमाम सियासी जमातों के अहम तरीन लोग हैं। इस पूरे कारोबार के हवाले से पहला वार हुकूमत पर हुआ जब ये तमाम सियासी ख़ानदान, जिसमें चौधरी भी शामिल हैं, शरीफ भी शामिल हैं, जरदारी साहब से मुंसलिक लोग भी शामिल हैं, जिसमें कि हुकूमत में शामिल तरीन और खुसरो बख्तियार वगैरह के ख़ानदान शामिल हैं। इन्होंने एक पिटीशन बनाई एक वकील के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत की उस रिपोर्ट को जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुगर कमीशन के ज़रिए बनाई थी, और जो कि बहुत ही तमाम माहिरीन कहते हैं कि वो आई ओपनिंग थी रिपोर्ट, उसको चैलेंज कर दिया और फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस सिलसिले में हुक्म इम्तनाई स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। लेकिन हफ्ते के रोज़ हुकूमत को एक बड़ी कामयाबी मिली और इस पूरे मामले में ऑल पार्टीज़ शुगर बैरन्स को शिकस्त हो गई, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को बड़ी कामयाबी मिली जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्म इम्तनाई को ख़त्म कर दिया और हुकूमत को इजाज़त दी कि उसके तमाम इदारे भरपूर तहक़ीक़ात करें, चीनी के कारोबार से मुंसलिक जितने इल्ज़ामात हैं उनकी भरपूर तहक़ीक़ात हो, चीनी का कारोबार अब के बाद से पाकिस्तान में शफ़ाफ़ हो जाए और पाकिस्तान के अवाम को इससे फ़ायदा हो। इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सबसे ज़्यादा इत्मीनान हुआ, क्योंकि यकीनन ये एक उनका सबसे मुश्किल फ़ैसला होगा, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम सियासी बड़ों को उन्होंने एक एक्शन के ज़रिए आड़े हाथ लिया।
चीनी 26 रुपए महंगी हुई है, इंक्वायरी करवाई गवर्नमेंट ने, उसकी रिपोर्ट आ गई, कमीशन की रिपोर्ट है, आगे तो एक्शन लेना है। नैब ने, FIA ने, हर जगह के ऊपर आपको ये माफियाज नजर आएंगे, आपको ये और भी बड़े बड़े ये जो कार्टेल्स बने हुए हैं अभी उनके पीछे भी अब हम जाएंगे। और ये सब इसके अंदर आपस में पॉलिटिकली इख्तलाफ होगा, पैसे के मामले में सब इकट्ठे हैं, और इसके ऊपर इंशाल्लाह ये मेरा वादा है इस कौम के साथ आखिरी हद के ऊपर जाएंगे कि हम इनको अब एक्सपोज करेंगे, इनसे फाइन्स करवाएंगे, इनसे पैसे लेंगे, इन्होंने जो किसानों से पैसे लिए उनसे वापस करवाएंगे। यकीनन इसके रास्ते में बड़ी रुकावट जो कि चंद रोज़ पहले आ गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के ज़रिए, वो अब ख़त्म हो गई है, और ये पाकिस्तान की तारीख की एक इंतहाई अहम तहकीकात और प्रोब जो है पाकिस्तान के रियासती इदारों के ज़रिए अब शुरू होने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुगर कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर नैब, FIA, FBR, एंटी करप्शन, स्टेट बैंक और मसाबकती कमीशन को मज़ीद तहकीकात करने और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ 90 दिन में फौजदारी एक्शन लेने की मंजूरी दी। तो 48 घंटों में सियासी इख्तलाफ भुलाकर ऑल पार्टीज़ शुगर बैरन्स कारोबारी मफाद में यकजा हो गए। 17 पटिशनर्स ने एक दरख्वास्त दी, एक वकील किया और एक मुद्दा उठाया कि हुकूमत को उनके खिलाफ मुकदमात बनाने, कार्रवाई करने और रिकवरी से रोका जाए। ये वही एक्शन था जिसके बारे में मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने बताया था। जो एक्शन लिया जाना है सब्सिडी की मद में, वो नैब ने लेना है। जो पहला रेफरेंस इसके नतीजे में है, ये हमने आज भेज दिया है चेयरमैन नैब को। 8 जून को शुगर फॉरेंसिक रिपोर्ट पर एक्शन का ऐलान हुआ। 10 जून को कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई को चैलेंज किया गया। 11 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी 70 रुपए फी किलो करने के मशरूत हुक्म के साथ 1 हफ्ते का स्टे ऑर्डर दिया। 19 जून को 1 दिन का मजीद हुक्म इम्तना दिया और फिर हफ्ते को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर स्टे ऑर्डर ख़त्म करते हुए हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ऑब्जर्वेशन दी कि उन्होंने पहले कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। जब रिपोर्ट को पढ़ा तो उसमें तो हुकूमती वुज़रा के हवाले से भी कमीशन ने लिखा है, इसलिए कैसे कहें कि रिपोर्ट तासुब की बुनियाद पर तैयार की गई है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजारों के वकील मखदूम अली खान से इस्तफसार किया कि क्या जिम्मेदार ठहराए गए किसी हुकूमती रुकन ने रिपोर्ट को चैलेंज किया। विफाकी वुज़रा और वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी कमीशन ने लिखा है, क्या वो भी तासुब है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ज़्यादा तशवीश तो इस पब्लिक ऑफिस होल्डर को होनी चाहिए जो आज इस हुकूमत में है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कोई ऑब्जर्वेशन देकर किसी फरीक का केस मुतासर नहीं करना चाहते, लेकिन रिपोर्ट में जो नतीजा अख्ज़ किया गया इसको मुताल्लिका फोरम पर साबित होना है। कमीशन की रिपोर्ट का स्टेटस सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग का है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट दरअसल मौजूदा हुकूमत और नैब का इम्तिहान है। उनका कहना था कि अभी तक पता नहीं नैब इस पर कार्रवाई करता भी है या नहीं। नैब तो ऐसी रिपोर्ट्स या शिकायत का पहले जायज़ा लेता है। उनका कहना था कि हम कह देते हैं कि इदारे फॉरेंसिक रिपोर्ट से मुतासर हुए बगैर आज़ादाना तहकीक करें। बहुत अहम मामला है और इस पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब शिबली फराज से। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब। ये बताइएगा कि अब ये एक बहुत बड़ा रुकावट थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर को ख़त्म कर दिया और अब हुकूमत को इदारों को कब इस पूरे मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएं। मगर ये बताइएगा कि एक बहुत अहम मामला है कि वज़ीर आज़म के इस पूरे मामले में फोकल पर्सन और इस पूरे मामले की प्रोब के एंकर बैरिस्टर शहजाद अकबर थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके इस रोल को डाइल्यूट कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको इसमें शामिल ना किया जाए। तो अब क्या एक्शन प्लान होगा, कौन इसको लीड करेगा, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद वज़ीर आज़म ने इसके लिए क्या रोड मैप तरतीब दिया है? देखिए कामरान खान साहब, ये बात तो तय है और जो आपके अतहर मिनल्ला साहब के फैसले से भी नज़र आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो बहुत डिटरमिन्ड हैं कि ये जो चीनी का जो स्कैंडल हुआ था, चीनी की जो कीमतों में एक होशरुबा इजाफा हुआ था, उस सिलसिले में जो भी इक़दाम किए उन्होंने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी जो रिपोर्ट मुरतब कराई, वो जो है तो इस बात का की रिफ्लेक्शन है कि उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। अगर तो किसी को कोई शक है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो उनको स्टे ऑर्डर नहीं लेना चाहिए था,
اب جو ہے تو تحقیقات چلے گی، پورے بھرپور طریقے سے چلے گی، اور جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں، چاہے وہ نیب ہو، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہو، کمپٹیشن کمیشن ہو، جو بھی ہیں، وہ اس پہ اب پوری اس کے ساتھ رفتار کے ساتھ، بیکاز اس میں ٹائم لائنز دی گئی ہیں، یہ ایک لامتناہی سلسلہ نہیں ہے کہ یہ جب ریفرنس ڈال دیا یا اس میں انکوائری شروع ہوئی تو وہ اس میں پھر سالوں لگے. نہیں، ان میں جو میٹرکس دیا گیا ایکشن کا، اس میں گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں شبلی فراز صاحب کہ سب کے پاس ایک محدود مدت دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے، یعنی کہ ایس سی سی پی کے پاس ایک مدت ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، سی سی پی کمپٹیٹیو کمیشن کے پاس ہے، ایف آئی اے کے پاس، اور پرہیپس نیب کے پاس بھی. تو گویا کہ یہ ایک لوز اینڈ چیز نہیں ہے، یہ اوپن اینڈڈ چیز نہیں ہے، اس کو بہرحال اس کی ایک ٹائم لائن مقرر کر رہی ہے حکومت. بالکل جی، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ان کی کمٹمنٹ ہے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے اور اس پہ وہ عمل پیرا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اور اسی طرح اور کارٹلز کے پیچھے بھی جائیں گے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو کہ خاص طور پہ چینی جیسا آئٹم یا آٹا ہو گیا یا اور گھی ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ایک غریب آدمی کی اسینشل آئٹمز ہیں، اور اگر اس میں بھی اگر لوگوں سے ان کا خون چوسا جائے تو میرا خیال ہے کہ پروفٹ بنانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف اور مینیپولیشن کے تھرو یا غلط طریقے سے پروفٹ بنانا، یہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور کوئی بھی ذمہ دار حکومت یہ اس کی اجازت نہیں دے سکتی. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا سیریس ایفرٹ ہوا ہے. ٹائم لائنز بڑے شارٹ عرصے کے لیے، ٹائم لائنز یہ بھی نہیں دی گئی کہ ایک سال یا 6 مہینے، اس میں بڑی شارٹ ٹرم جو ہے تو ٹارگٹس دیے گئے ہیں، کیونکہ رپورٹ مکمل ہو چکی ہے. اب اس کو صرف ویریفائی کرنا ہے اور اس پہ ایکشن لینا ہے. شبلی فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ اب کاروبار جو ہے یہ شفاف ہو جائے گا، اب یہ سبسڈی سے پاک ہو جائے گا، اور یہ اب ایک فری مارکیٹ کا فری کاروبار ہوگا؟ اس میں جو یہ سیاستدانوں کی وجہ سے اس میں جو گورنمنٹ کی جو کنسیشنز ملتے تھے، گورنمنٹ کی سبسڈیز ملتی تھی، گورنمنٹ کی ساری سپورٹ ہوتی تھی اور لوگوں کا نقصان ہوتا تھا، پھر پاکستان کی زرعی پیداوار کو اس سے نقصان ہوتا ہے، تو کیا اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس سے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے؟ بالکل جی، بالکل. شریف فیملی تھی یا زرداری صاحب کی فیملی تھی، یہ سارے جو ہیں یہ جو ہے تو حکمران تھے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس اپنے کاروبار کو دوام دینے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی چیزیں کی اور ہر جگہ پہ اپنے لوگ لگائے جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے اس قسم کے رپ آف کے لیے. تو اب جو ہے چونکہ پرائم منسٹر کو کاروبار نہیں ہے، اور وہی واحد شخص ہیں جو کہ اس قسم کا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، جبکہ ماضی میں یہ سب کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بیسس پہ حکومتیں چل رہی تھی. بہت شکریہ جناب شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں صنعتی کاروبار کو اور عام کاروبار کو، اس سے منسلک روزگاروں کو بہت بڑا سہارا ملا کورونا کے ماحول میں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مختلف پیکیجز کے ذریعے اب اسٹیٹ بینک تیاری کر رہا ہے، ہاؤسنگ فائنانس کے لیے بینکوں کو تیار کیا جائے. تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈیپٹی گورنر برائے بینکنگ جناب جمیل احمد. ویلکم بیک. کورونا سے متاثرہ پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پہ غریب پاکستانیوں کی مدد کے لیے حکومت نے احساس پروگرام کے ذریعے 180 ارب روپے تقسیم کیے، جو یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ مدد تھی. اس کے علاوہ حکومت نے صحت کے سیکٹر میں ان گنت اقدامات کیے ہیں، لیکن پاکستان کے کاروبار میں موجود روزگاروں کو بچانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت ہی اچھے اور بہت ہی شاندار پیکیجز فراہم کیے ہیں، جس سے یقیناً پاکستان میں لاکھوں نوکریاں بچی ہیں، پاکستان کے کاروبار دیوالیہ ہونے سے بچے ہیں، اور یہ ہر لحاظ سے معیشت و کاروبار کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 4 پیکیجز کورونا کے بعد جاری کیے، اور جس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ کاروباروں کی معاونت ہوئی، قرضوں کے التوا، روزگار کو بچانے کے جو اقدامات کیے گئے، اس سے تقریباً 1100 ارب روپے کی فائنینشیل سپورٹ ہے جو کہ اس طرح سے کاروبار کو حاصل ہوئی، اور جس سے کاروبار اور صنعتوں میں یقیناً پہیہ چلتا رہا ہے، اور حالات اس حد تک خراب نہیں ہوئے یا تباہی سے دوچار نہیں ہوئے جیسا کہ ہو سکتے تھے. اس پوری صورتحال کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے
पिछले चंद माह के दौरान 5.25% शरह सूद में भी कमी की, जिससे कारोबारों को और बिजनेसेस को तकरीबन शरह सूद की अदायगी में 400 अरब रुपए की सपोर्ट हासिल हुई। ये भी एक बहुत बड़ी मदद साबित हुई है और अब एक नया दौर का आगाज़ होने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकों के साथ मिलकर तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज है जो यकीनन मुल्क की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसमें बैंकों की सरमायाकारी के हवाले से एक बहुत बड़े प्रोग्राम पे काम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म खुद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में बैंकों की मावनत से एक प्रोग्राम तकरीबन तैयार कर चुका है। मईशत की कारोबार की जिस अंदाज से मदद हुई है और जो कि यकीनन एक काबिल कदर मदद है, इस पर निगाह डालते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के माहौल में पिछले 3 माह के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कैश फ्लो बढ़ाने, शरह सूद घटाकर फाइनेंशियल कॉस्ट कम करने और बेरोज़गारी की रोकथाम के लिए मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए सस्ते कर्जे देने के कलीदी इक़दाम किए हैं, जिनमें कमर्शियल बैंकों के ज़रिए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ के लिए आसान फाइनेंसिंग, रोज़गार स्कीम के लिए रियायती कर्जे और पहले से लिए गए कर्ज़ों की वसूली मौखर करना शामिल है, ताकि मईशत, कारोबार और इंडस्ट्रीज़ को सहारा मिल सके। मुराती पैकेज में रहन शुदा शेयर्स पर भी कर्ज लेने की इजाज़त दे दी गई है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक 8,66,000 कर्ज दहिंदगान के 519 अरब रुपए के कर्जे मौखर किए गए, जबकि 85 अरब रुपए के कर्जे रीस्ट्रक्चर भी किए गए, जिसके तहत असल रकम की वसूली के बजाय सिर्फ मार्कअप वसूल किया जा रहा है, जबकि कर्ज़ों में ताख़ीर और रीशेड्यूलिंग क्रेडिट हिस्ट्री पर असरअंदाज नहीं होगी। 108 अरब रुपए की फाइनेंसिंग 1503 कारोबारी यूनिट्स और सनती इदारों को की गई, जिससे कम से कम 10 लाख मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी और इनकी मुलाजमतें महफूज करने के साथ घरेलू अखराजात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। सनतों, कारखानों और कंपनियों को सिर्फ 4 से 5% सूद पर कर्जे दिए गए हैं, जिनमें कर्ज की असल रकम की अदायगी 2 साल में की जा सकेगी। कोरोना के माहौल में प्राइवेट सेक्टर के 29 अस्पतालों को तिब्बी आलात और मशीनरी की खरीदारी के लिए सिर्फ 3% शरह सूद पर 5.5 अरब रुपए के सस्ते कर्जे फराहम किए गए। अहम बात यह भी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी के तहत 17 मार्च से 15 मई के दौरान शरह सूद में 5.25% कमी की, जबकि इस अरसे में भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम और तुर्की जैसी उभरती हुई मईशतों में शरह सूद में सिर्फ 25 बुनियादी पॉइंट से लेकर 3% तक कमी की गई। पाकिस्तान में पॉलिसी रेट में 525 बेसिस पॉइंट्स की कमी से बिजनेस सेक्टर के कर्जों के सालाना सूद में 400 अरब रुपए की कमी हुई है। अब वजीर आज़म इमरान खान के कंस्ट्रक्शन पैकेज और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए बैंकों से रियायती होम फाइनेंसिंग का नया दौर शुरू होने को है। इस पूरे माहौल पे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जमील अहमद, जो डेप्यूटी गवर्नर हैं बैंकिंग के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब। सबसे पहले तो मुझे बताइए जो जॉब्स सेव हुई हैं जो इस कारोबार में, बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज़ में, और जो उसके लिए ये स्टेट बैंक का पैकेज था उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा है और अब तक का करंट इसका अपडेट क्या है? कामरान साहब, जो हमने स्टेट बैंक की तरफ से जो स्कीम्स लॉन्च की थी उसमें 3 बहुत प्रोमिनेंट स्कीम्स हैं। जो रोज़गार स्कीम है वो बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है और उसका पर्पज़ ये था कि बैंक्स के ज़रिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाए ऐसे बारोअर्स को जिनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो उन्होंने जो एम्प्लॉय किए हुए हैं वो उसमें से कुछ किसी तरह लोगों को नौकरियों से जो है वो निकाला ना जाए, और बैंक्स जो है वो उस सिलसिले में अपने क्लाइंट्स की जो हेल्प करें। 1.3 मिलियन एम्प्लॉइज़ जो है उसमें जो है वो उनके रोज़गार को प्रोटेक्ट किया गया है, और टोटल जो बारोअर्स जिसमें जिन्होंने अवेल किया इस स्कीम का उसके भी तादाद जो है वो लाखों में। इस स्कीम के अंदर हमने अभी तक जो है वो टोटल एक बैंकों को जो रिक्वेस्ट जो उन्होंने अप्रूव किए हैं वो कोई 108 बिलियन की हैं, और अभी हमने इसके अंदर कोई कैप नहीं लगाया हुआ। अभी जैसे जैसे जो रिक्वेस्ट आएंगी तो हम रीफाइनेंस बैंक्स को प्रोवाइड करेंगे। और बैंक्स जो है अभी भी एप्लीकेशंस रिसीव कर रहे हैं। 30 जून इस स्कीम की जो है वो लास्ट डेट है जब तक। और ये फरमाइएगा कि ये जो दूसरा पैकेज था जिसमें के बिजनेसेस को डिफ़ॉल्ट से बचाना था, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है और उसमें अब तक कितने सम्स कमिट हो चुके हैं?
जी, उसके अंदर दो स्कीम्स थी। एक तो ये प्रिंसिपल डेफरमेंट की स्कीम थी, जिसमें कि अगर कोई बारवर बैंक को रीपेमेंट में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो बैंक को अप्रोच कर सकता है और बैंक्स उसको 1 साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट को डेफर कर सकते हैं। और बारवर के लिए ये था कि वो अपना मार्कअप सिर्फ सर्व करेगा। उस स्कीम के तहत भी बैंक्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा बारवर्स को रिलीफ प्रोवाइड किया है। कोई 10 लाख और 60,000 टोटल बारवर्स ने उस स्कीम को जो है वो अवेल किया है। ये छोटे और मिड साइज़ के कारोबार हैं, इनके लिए भी इसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा आया है ना, ये भी एक अच्छी सपोर्ट रही। जी, ये जो हमारी डेफरमेंट ऑफ प्रिंसिपल वाली स्कीम थी, इसके तहत कोई 638 बिलियन के टोटल जो है वो जो लोन जो है वो डेफर करवाए गए हैं बारवर्स की तरफ से। जो दूसरी हमारी स्कीम थी रीस्ट्रक्चरिंग रीस्केड्यूलिंग वाली, उसके अंदर भी बैंक्स ने जो है वो बहुत सारे बारवर्स को रिलीफ प्रोवाइड किया है और उसके अंदर जो है वो बैंक्स और बारवर में मिल के आपस में उसका जो है वो एक नया समझ लें कि टर्म्स जो है वो एग्री किए हैं और उसके तहत बारवर जो है वो अपना प्रिंसिपल और मार्क जब जो है वो लेटर डेट के ऊपर जो है वो रीपे कर सकता है। जमील साहब ये बताइएगा, नई सनतें लगाने के लिए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोविड से पहले भी बड़ी पुरकशिश रेट्स होते हैं, जो कि नई सनतें लगाने के लिए 3-4% पे जो आप एक्सटेंड करते हैं, जो आपने फैसिलिटी दी है। ये बार बार सुनने में आता है सनतों की जानिब से कि वो जो सिक यूनिट हैं जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बंद हो गए और उसमें इंटरेस्टेड लोग हैं जो कि उसको चला सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से दोबारा उसमें जॉब्स भी दोबारा चल सकती हैं और फिर वो इकॉनमी में भी शरीक हो सकते हैं। लेकिन शिकायत ये होती है कि सेंट्रल बैंक उसके लिए नई सनतों के लिए तो कंसेशनरी लोन फराहम करता है, लेकिन उसके लिए अगर वो फराहम करे तो वो इकॉनमी के लिए एक बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। जी, इसके लिए हमने बैंक्स के साथ मिलके एक आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक हमने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी बैंकों के ज़रिए उसको लॉन्च किया है और ऑलरेडी ये कंपनी बन चुकी है। इसका काम ही यही होगा कि ये बैंक्स के बिहाफ पे जो है वो बारवर के साथ जो है वो टर्म्स तय करेगी। बैंक्स अपने जो प्रॉब्लम लोन्स होंगे, जो रिस्ट्रक्चर करने वाले लोन्स होंगे, जहाँ पे के प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, वो इस कंपनी को ट्रांसफ़र करेंगे और ये कंपनी स्पेशलाइज़ करेगी कि ये बारवर्स के साथ मिल के तो उस प्रोजेक्ट की रिवाइवल और रिस्ट्रक्चरिंग करे और उसको अगर ज़रूरत है तो फर्दर उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करे, ताकि उन जहाँ के जिनको रिवाइव किया जा सकता है उनको रिवाइवल की तरफ लेके जाया जाए और रोज़गार लोगों का बचाया जाए। ये अभी रिसेंटली कंपनी बनी है और इसमें अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सब चीज़ें बन गई हैं और अब उसने इनफैक्ट जो है वो पहली ट्रांजैक्शन जो है वो पिछले हफ्ते ही की है और अब इसने काम जो है प्रॉपर्ली शुरू कर दिया है और ये आगे चल के जो है ये तो बहुत अच्छी बात है। जमील साहब ये बताइएगा कि अब जो है वो तमाम निगाहें जो पाकिस्तान की इकॉनमी का नक्शा बदलने के लिए या गेम चेंजर की बात होती है, प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट हो, सबकी फोकस है, कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है हिस्टोरिक है और फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, इससे 40-50 इंडस्ट्रीज़ एक साथ चलेंगी इंशाल्लाह। और मगर यहाँ मसला यही है कि हाउसिंग फाइनेंस बैंकों की तरफ से अवेलेबल नहीं होता और ये मामला तवील अरसे से पाकिस्तान की मईशत को रोकने में हाइल रहा है और पिछले दिनों बहरहाल फोरक्लोजर लॉज जो मसला था वो भी हल हो गया, लाहौर हाई कोर्ट ने वो स्टे भी ख़त्म कर दिया है। और अब ये बताइएगा कि इसके लिए क्या कर रहा है सेंट्रल बैंक बैंकों के साथ मिलके, क्योंकि बैंकों की मदद के बगैर ये पाकिस्तान की मईशत का नक्शा बदल नहीं सकता, कंस्ट्रक्शन के ज़रिए और ये जो हाउसिंग फाइनेंस के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। जी, ये कामरान साहब एक बहुत ही अहम एरिया है जिसके अंदर हम ने पहले भी काम गवर्नमेंट के साथ मिलके किया है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ थे जिनको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत थी और अब हमने बैंक्स के साथ मिलके रिसेंटली जो है वो कुछ मीटिंग्स की हैं। आपको याद हो अगर तो हमने पिछले हफ्ते भी एक बैंक्स के साथ मीटिंग की है जिसमें कि 25 के करीब जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स जो है वो बैंक्स के उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और स्टेट बैंक के गवर्नर ने उस मीटिंग को चेयर किया। तो उसमें जो है वो जो बैंक्स के कंसर्न्स थे और जो इश्यूज़ आ रहे थे हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए उनको डिस्कस किया गया और गवर्नमेंट की तरफ से जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग के चेयरमैन ने भी कुछ उनके साथ जो डेवलपमेंट प्लान है गवर्नमेंट का
नया पाकिस्तान हाउसिंग के सिलसिले में वो उनके बैंक्स के साथ डायरेक्टली शेयर किया, और इसके अलावा जो उसका जो फाइनेंशियल मॉडल है उसकी तफसीलात जो है वो बैंक्स के साथ शेयर की। तो बैंक्स जो है वो बहुत रिसेप्टिव थे इस स्कीम के तहत, और इनिशली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्लान है कि शुरू के जो फ़ेज़ 1 है उसके तहत 100,000 जो 1 लाख हाउसेज़ जो है वो उनको बनाए जाएंगे और उनको जो है वो फाइनेंसिंग अरेंज की जाएगी। तो इस सिलसिले में बैंक्स ने जो कमिट किया है कि दे विल बी प्लेइंग देयर ड्यू रोल, और उसमें जो स्पोर्ट्स बैंकिंग की तरफ से रिक्वायर्ड है वो इंशाल्लाह उसमें वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसके सिलसिले में एक बहुत हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है जिसको गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चेयर करेंगे। उसमें स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स हैं, इसके अलावा नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन और रिप्रेजेंटेटिव हैं, और बैंक्स की तरफ से 6 प्रेसिडेंट्स जो हैं वो उसके मेंबर होंगे। तो ये कमेटी जो है वो तो हम क्या कह सकते हैं जमील साहब, क्योंकि ये तमाम जो इस तरह की चीज़ें होती हैं नॉर्मली पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी में फंस जाती हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक की हो, बैंकों की हो या गवर्नमेंट की हो, लेकिन क्योंकि ये तो बहुत ही टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है तो हम कह सकते हैं कि इसके कॉन्क्रीट रिजल्ट हम हफ्तों में नहीं दिनों में देख लेंगे। कामरान साहब, इसमें मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि स्टेट बैंक एक प्रोफेशनल अदारा है, और हम जब किसी काम को टेकअप करते हैं तो उसके लिए हम जो है वो अपने अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई हर्डल्स होते हैं तो हम उनको बिल्कुल एड्रेस करते हैं। और इसके अलावा बैंक्स की तरफ से भी चूँकि पूरा कोऑपरेशन है तो उसमें, और ये स्कीम बनाई ही बैंक्स की इनपुट के साथ गई है, तो इसलिए इंशाल्लाह मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हम इसको जो है वो आगे लेके चलेंगे और बहुत जल्दी लेके चलेंगे। और उसमें अगर कोई इश्यूज़ आएंगे तो इसीलिए जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक उसको चेयर कर रहे हैं, तो इन इश्यूज़ को ऑन द स्पॉट जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। किसी किस्म की अगर कोई रेगुलेटरी हिंड्रेंस होगी तो हम उसको एड्रेस करेंगे। और इसके अलावा मिली हैं कि जो बैंकिंग से रिलेटेड और इश्यूज़ हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन की रास्ते में हाइल हो जाते हैं, और फिर ये कि बैंकों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ये जो वज़ीर आज़म ने थिंक टैंक वगैरह बनाया है जिसका ताल्लुक, जिसमें ज़ाहिर कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ के मामलात भी हैं, मुझे ये बताया जाता है कि इसमें बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। स्टेट बैंक ने बैंकों के साथ मिलके कोई बहुत ही कमेंडेबल एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। जी, हमने एक कंसल्टेशन के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया हुआ है, जिसमें हमने चैम्बर्स के साथ और डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं और इसके अलावा इंडस्ट्री के जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके साथ हमने बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया और रेगुलर मीटिंग्स की हैं। इसके अलावा थिंक टैंक्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था ऑन फाइनेंस, प्रमोटिंग फाइनेंस, उसकी भी रिकमेंडेशंस हमारे पास आ गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उनके ऊपर भी हमने उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम शुरू कर दिया। कुछ रिकमेंडेशंस जो है उन पे एक्शन स्टेट बैंक लेगा, कुछ के ऊपर एक्शंस जो है वो कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लेंगे। तो हमने अपनी साइड की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन शुरू कर दिए हैं। कुछ एक्शन हमने ऑलरेडी भी ले लिए हैं और कुछ जो है वो पाइपलाइन में है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उनके ऊपर जो है वो हम अपने मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस के ज़रिए जो है वो इसको जो है वो पब्लिक को और अपने स्टेक होल्डर्स को जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जमील अहमद, डिप्टी गवर्नर बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।